Hello everyone, welcome back. You are watching a video lecture series of irrigation engineering, and today we are going to discuss about the distribution work. So let's start with the example of to design an online canal of alluvial soil throughout the Kennedy's theorem. Before starting the example, we are going to take a look of design procedure. So it is on your screen. First of all, we are going to understand about the velocity. So first step is to describe the velocity. Okay, while we are going to design of a online canal alluvial soil by Kennedy's theorem. So first step is to define the critical velocity. The equation is V C is equal to 0.546 into m into d raised to 0.64. Then after we have to calculate mean velocity with the equation of c into rs raised to 1 by 2 or c under root rs, right? So throughout it we can calculate this mean velocity and critical velocity. I am not going to describe single components because we already understand in design procedure in last lectures. Then after we are going to calculate this c from the Cutter's formula, and the equation is from this equation c is equal to into bracket 1 upon r plus into bracket 23 0.00155 upon s bracket close divided by 1 plus 23 plus 0.00155 divided by s bracket close n upon under root r whole bracket close, right? So it is a very simple equation. If you can see that here on denominator and on upper portion the values of in a bracket will be same. So where n is a reciprocity coefficient वो तो आपको पता ही है, and then b by d ratio is assumed between 3.5 to 12, and the discharge equation क्या है, q is equal to a into v, area into velocity, from where the area is in meter square and velocity in meter per second. So the fluid supply depth is fixed by the trial to satisfy the value of m. Generally the trial depth is assumed between the 1 meter to 2 meter. So to satisfy this m value, we are going to take a value of depth is between 1 to 2 meter if not given, right? If the condition is not satisfied within this limit, then it may be assumed accordingly. मतलब फिर हमको जो भी लेनी है उस हिसाब से हम ले सकते हैं. ये है पूरी डिज़ाइन प्रोसीजर, और हम नेक्स्ट चलते अपने एग्जाम्पल के थ्रू डिज़ाइन के. ओके, सो you can see here design an irrigation channel with the flow data following data. A full supply discharge is 6 cumex. So here हमें Q की वैल्यू मिल गई है. Rugosity coefficient small m is 0.0225. CVR critical velocity ratio m is equal to 1. Then bed slope is 1:5000. Assume other reasonable data for the design, right? So assume the fluid supply depth d is equal to 1.5 m. जैसे हमको m को सापेक्ष में रखने d की वैल्यू 1 से के बीच में लेनी थी, 2 के बीच में लेनी थी, तो हमने कितनी ली है 1.5. यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है आपको कि ये d कहाँ से आया. ओके, 1 से 2 के बीच में हमने 1.5 एज्यूम कर लिया है. नाउ द क्रिटिकल वेलोसिटी आपको पता ही है, इक्वेशन 0.546 इंटू एम इंटू सी रेस टू डी रेस टू 0.64. तो यहाँ पे 0.546 इंटू एम कितना दिया है, यहाँ पे 1, सी वी आर एम यहाँ पे 1 दिया है, इंटू डी कितना है हमारे पास अभी एज्यूम किया हमने 1.5 मीटर. तो 1.5 रेस टू 0.64, तो हमें डायरेक्ट क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाएगी 0.707, राइट. अब हमारे पास m की वैल्यू है 1 है, तो क्या होगा, जो हमारा v है v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू वी सी, मतलब मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी ड्यू टू द m इज इक्वल टू 1. नाउ एरिया हमारे पास पड़ा है, एरिया का इक्वेशन क्या होगा, डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी, राइट. तो डिस्चार्ज हमारे पास कितना है 6 क्यूमेक, यहाँ पे मैंने 6 क्यूमेक लिखा है, और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 0.707. तो डिस्चार्ज 6 डिवाइड बाय 0.707 इज इक्वल टू 8.49 मीटर.
अब मेरे पास मीटर में एरिया भी आ चुका है, वेलोसिटी भी है एंड डेप्थ भी है, तो उसके ऊपर से मैं एरिया का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ फॉर द ट्रेपेजोइडल सेक्शन BD प्लस ND स्क्वायर. Now from the BD plus ND square we can calculate B is equal to 4.16 मीटर. एरिया इज इक्वल टू BD प्लस ND स्क्वायर में रखूंगा तो एक क्वेश्चन बनेगा 1.5B प्लस 2.25 और एरिया की वैल्यू है हमारी 8.49. तो हमें विड्थ B मिल जाएगा, B कितना, सॉरी B मिल जाएगा, B कितना होगा 4.16 मीटर. उसके बाद पेरीमीटर का इक्वेशन है B प्लस 2√2 इंटू डी, राइट. ये एक पेरीमीटर का इक्वेशन आपको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है, ना समझ में आए तो एक बार नोट डाउन कर दीजिए, B प्लस 2√2 इंटू डी. ओके, तो B तो हमारे पास है नहीं, फाइंड किया हमने 4.16, राइट. 10 प्लस 4.24 कहाँ से आया, 2√2 इंटू डी की वैल्यू हमने 1.5 लिया, वो पुट कर दी तो हमें आंसर मिल जाएगा पेरीमीटर का 8.40, राइट. मतलब वेटेड पेरीमीटर आपका 8.40 मीटर तक का है. और R कितना रहेगा, R का वैल्यू क्या है आपके पास, A ओवर P, ठीक है, एरिया डिवाइड बाई पेरीमीटर. तो एरिया हमारे पास कितना, सॉरी कितना मिला हमें, ओके. R इज इक्वल टू क्रिटिकल मीन डेप्थ कितना है, एरिया ओवर पेरीमीटर. तो एरिया कितना है मेरा 8.49 और पेरीमीटर 8.40. यहाँ पे गलती से मैंने 4.16 ले लिया है, बी की वैल्यू लिख दी गलती से ए के कारण, बट ए हमारा एरिया कितना आया था यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 8.49, राइट. ये सब निकाल देते हैं, 8.49 हमारे पास एरिया है, डिवाइड बाय पेरीमीटर कितना आया मेरा 8.40. तो अप्रोक्सीमेट हमारे वैल्यू मिल गई इसकी आर की कितनी मिल गई मेरे को 1 मीटर अप्रोक्सीमेट, राइट. तो ये था पहले तो सॉल्यूशन. अब दूसरा ट्रायल करते हैं हम. अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ सी, ठीक है. तो सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फॉर द कटर्स फॉर्मूला हम बाकी सब की वैल्यू पुट कर देंगे. कटर्स फॉर्मूला क्या हमारे पास डिजाइन प्रोसीजर में मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, C इज इक्वल टू 1/n, n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है 0.0225, प्रॉब्लम के अंदर ही दिया है, देखो n की वैल्यू आपको दिया है प्रॉब्लम के अंदर 0.0225. ठीक है, बाकी का इक्वेशन प्लस 23 प्लस 0.0155 अपॉन एस, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है एन एस और √r. तो सभी की वैल्यू हमारे पास है, एन ये एस हमारे पास दिया है 0.0002, ठीक है 0.0002. एस मतलब स्लोप आया 1:5000. आप 1:5000 करोगे तो आपको 0.0002 ही आंसर उसका मिलेगा, ये वाला, ठीक है. और R की वैल्यू हमारे पास क्या आई, A बाई पी की वैल्यू 1.0. तो पूरी वैल्यू पुट करने पे हमें C की वैल्यू मिल जाएगी 44.49. अब हमारे पास चेजिस इक्वेशन है, चेजी का फॉर्मूला है वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करने का. वो क्या है, C इंटू √RS, V इज इक्वल टू C √RS. तो वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे रखा है, ये जो भी वैल्यू रखी है वो V अपने पास C है, C कितना है 44.49 इंटू अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट है यहाँ से यहाँ तक, इंटू RS. R कितना है हमारा A बाई पी 1 और S कितना मिला है हमें स्लाइस ऑफ 1:5000 मतलब 0.0002. तो उसका आंसर मुझे क्या मिला 0.629 मीटर पर सेकंड. तो ये हमारा हो गया मीन वेलोसिटी थ्रू आउट द चेजिस फॉर्मूला. नाउ CVR की वैल्यू, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, सब V ओवर VC, राइट. मीन वेलोसिटी अपन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो जीरो उसका रेशियो क्या आएगा मेरा 0.889 विच इज अप्रोक्सीमेट ऑफ 11, ठीक है, सॉरी विच इज अप्रोक्सीमेट ऑफ 1, यहाँ पे इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 1 आएगा ये वैल्यू. नाउ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एज द
critical velocity ratio is much less than 1, the channel will be in the silting. So the design is not satisfactory. Here the full supply depth is to be assumed by the trials to get the satisfactory result. मतलब CVR की वैल्यू, ये जो CVR हमने फाइंड किया अभी 0.889 अप्रोक्सीमेटली 1 जितना, अगर ये बहुत ज़्यादा एक से कम हो, जैसे कि 0.5 हो गया, 0.43 हो गया, तो हमें वो सिल्टिंग के अंदर जा रही है, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रही हमारे टर्म्स को. यहाँ पे 0.9 के आसपास है, मतलब एक के एकदम नज़दीक है, तो अप्रोक्सीमेट हम 1 ही मान लेंगे. यहाँ पे बहुत कम मात्रा में सिल्टिंग होगा ऐसा हम सोच सकते हैं, राइट. तो एक चीज़ है ध्यान में रखने लायक. अब इसी को सेकंड ट्रायल करते हैं हम इसका. ओके, एज्यूम द फुल सप्लाई डेप्थ D इज इक्वल टू 1.25. पहले हमने 1.5 लिया था, यहाँ पे 1.25 लेते हैं. क्रिटिकल वेलोसिटी V इज इक्वल टू 0.546 m d रेज टू 0.64. D की वैल्यू मैंने 1.25 मीटर एज्यूम की है, m की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा 0.629. नाउ m इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 0. ऑब्वियसली m 1 मिलेगा तो मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगी. तो मैं क्या करूंगा, एरिया फाइंड कर दूंगा, ठीक है. एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा, डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी. तो डिस्चार्ज मेरा 6 है, वेलोसिटी 0.629, तो मेरा आंसर आएगा 9.53 मीटर. नाउ एरिया इज इक्वल टू बी डी प्लस एन डी स्क्वायर, उसको सॉल्व करते हैं, मेरे को आंसर मिलेगा 1.25b प्लस 1.56, ठीक है. उसके अंदर मैं एरिया की वैल्यू पुट करूंगा 9.53, तो मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी जो होगी 6.38 मीटर. नाउ पेरीमीटर का इक्वेशन हम सबको पता है, b प्लस 2√2d, यहाँ पे d मेरा 1.25 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, b प्लस 2√2 इंटू 1.5, जहाँ पे b की वैल्यू 6.38 मीटर रखते ही हमें पेरीमीटर का आंसर मिल जाएगा 9.92 मीटर. नाउ r की वैल्यू a ओवर p 0.96, आपको आंसर मिलेगा 6.38 डिवाइड बाई 9.92 करने पे आपको r की वैल्यू मिल जाएगी 0.96. नाउ फ्रॉम द कटर्स फॉर्मूला हमारे पास n की वैल्यू है 0.0225, हमारे पास s है 0.0002, s हमें मिलेगा 1/5000 करने पर, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 5000 करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा. $0.0002, ठीक है. r हमारे पास मिला है 0.96, तो हमारे पास अब कटर फॉर्मूला से जो आंसर मिला है वो 44.23 आया है. उसके पहले कितना था, 44.49 समथिंग आया था कुछ. बाय द चेजिस फॉर्मूला v इज इक्वल टू 44 इंटू √1 इंटू 0.0002. तो ये क्या है हमारा चेजिस का फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू c√rs, ठीक है, c√rs. c हमारा 44.23, √r कितना है 1, s कितना है 0.0002, तो हमें मीन वेलोसिटी मिल गई 0.613 मीटर पर सेकंड. नाउ द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 0.613 डिवाइड बाय 0.629, राइट. सो व्हाट इज 0.613? इट्स योर वेलोसिटी, राइट. एंड व्हाट इज 0.629? इट इज योर क्रिटिकल मीन वेलोसिटी. यहाँ से तो v अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी हमें सीवीआर मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, विच इज 0.97, विच इज लेस देन 1. इन दिस केस द सीवीआर इज वेरी क्लोज टू 1, so the design may be accepted. So finally d is equal to 1.25 मीटर, b is equal to 6.28 मीटर भी आप ले सकते हो. यहाँ पे डेप्थ एंड विड्थ दोनों, अगर मैं डेप्थ 1.25 रखता हूँ, फिर भी अगर 1.5 रखूंगा तो मुझे कॉस्ट ज़्यादा आएगा उसका. यहाँ पे 1.25 रखने से कुछ कॉस्ट कम आएगी. हम क्या करते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल फाइंड करने का प्रयास करते रहते हैं डिजाइन कर करके. ओके, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा. आज मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाए. फिर से मैं थोड़ा एक बार ऊपर से देख लेते हैं उसको, ठीक है. स्टेप्स देख लेते हैं आप अभी. सबसे पहले मैंने क्या किया था, इसकी डेप्थ मेजर कर दी, 1.5 एज्यूम कर ली, ठीक है.
मैंने आगे बताया था m के लिए हम लोग क्या करते हैं, d एज्यूम करते हैं 1 से 2 के बीच में। मैंने 1.5 ले लिया, मेरे पास CVR दिया है, स्मॉल m 1 दिया है, रोगोसिटी कोफिशिएंट n दिया है मेरे को 0.0225, जो मेरे को कटर्स फॉर्मूला के अंदर c फाइंड करने में काम आएगा। उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज दिया कैपिटल Q इज इक्वल टू 6 क्यूमेक, बैड स्लोप दिया है 1:5000, तो मैं 1/5000 करूंगा तो मेरे को 0.0002 आंसर मिलेगा, जो मेरा s होगा, ठीक है, कैपिटल S। नाउ क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास है v c इज इक्वल टू 0.546 m d रेस टू 0.64, वैल्यू पुट करते मेरे को आंसर मिलेगा 0.707। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मीन वेलोसिटी 1 होगी तो मेरे को सॉरी m की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये जो आपका CVR है उसका, तो मेरे को क्या मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, तो मेरे को एरिया ऊपर से मिल जाएगा, डिस्चार्ज ओवर वेलोसिटी 6/0.707 इज दिस 8.49 मीटर। नाउ एरिया इज इक्वल टू BD प्लस ND स्क्वायर, उसके ऊपर मेरे इक्वेशन मिलेगा 1.5B प्लस 2.25, देन B मेरे को मिल जाएगा 4.16 मीटर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या फाइंड करूंगा, पेरीमीटर, एरिया फाइंड कर दिया, अब मैं करूंगा क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड कर दिया, अब मेरा टास्क है पेरीमीटर फाइंड करने का। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है b प्लस 2/√2, ठीक है, इनटू कैपिटल D, राइट, जो हमने सप्लाई डेप्थ मेजर किया है वो। तो D तो वैल्यू अपने 1.5 है, 2/√2, B की वैल्यू हमारे पास है 4.16, पुट करते 8.40 आंसर आ जाएगा। R की वैल्यू आएगी A/P, एरिया डिवाइड बाई पेरीमीटर, तो हमें R मिल जाएगा जो मेरा 1 है, जो काफ़ी अच्छी बात है, 1 आना ही चाहिए नॉट सिल्टिंग और स्कोरिंग बनाने के लिए। करने के बाद मैंने C कटर्स की वैल्यू मुक दी 1/n प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाई S डिवाइड बाई 1 प्लस 23 0.015 डिवाइड बाई S n/√r, ये उसका इक्वेशन है, उसके अंदर सब वैल्यू पुट कर दी, 44.49 आंसर में गया। चेजेस फॉर्मूला मैंने पुट कर दी, v इज इक्वल टू c/√rs, r की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0.0002 और c की वैल्यू 44.49, उसके ऊपर मेरा आंसर मिल गया 0.629 मीटर पर सेकंड। देन आफ्टर मेरा लास्ट चीज CVR फाइंड करने का रहेगा, वेलोसिटी डिवाइड बाय क्रिटिकल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्रिटिकल वेलोसिटी। अब मीन वेलोसिटी मुझे मिल गई है चेजेस फॉर्मूला से 0.629 डिवाइड बाय मेरी क्रिटिकल वेलोसिटी मुझे मिली थी 0.707, तो मेरा आंसर आएगा 0.889 विच इज रिलेटेड टू 1। क्लियर, यहाँ पे एक से बहुत ही ज्यादा कम आती है तो मैं सिल्टिंग हो रहा है ऐसा ध्यान में रखता और उसको डिजाइन को कैंसिल कर देता। ये है पूरा आपका सम की समरी, ठीक है। आज के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 और सम देखेंगे और उसके बाद हम लेसिस की थियरी स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।